Good morning students and welcome back to the session. Today we are going to cover the two topics, that is position vector and displacement vector. बच्चों as the name reveals itself, ठीक है कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है बच्चों, ये एक पार्टिकल का पोजीशन बताता है जो कि किसी स्पेस में लोकेटेड है अकॉर्डिंग टू दी चोजन ओरिजिन। मतलब क्या है कि दैट इफ सपोज दिस इज a coordinate system, suppose this is a point P, and let's say the coordinate of this particular point are x and y, and this is origin. Then the vector joining, or you can say starting from this point and ending at this point is known as position vector. Because this particular vector is representing the position of point P with respect to the chosen origin. ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर सपोज कीजिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज द ओरिजिन, आपको पता है ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट बच्चों P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, देन दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है, विच इज ड्रॉन फ्रॉम origin to this particular point, या फिर आप कह सकते हो which is directed from this origin to this particular point, is representing the position vector. ठीक है, the general symbol that is small r with an arrow. ठीक है, and let's say this particular position vector is making an angle theta with the x-axis, right? चलिए, अब पोजिशन वेक्टर को जब हमको एक्सप्रेस करना होता है बच्चों, ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है, एंड देन वी विल यूज द यूनिट वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट दिस पोजीशन वेक्टर. सो लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज x, वी नो दैट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज y in this triangle. तो यहां पर आप देखेंगे that from this particular triangle x is equal to r cos theta, right? I can write this. This is equation first. Then y is equal to this r sin theta. ठीक है, यह कहने का मतलब है that this particular vector has been resolved into two components, that is one component is this one. This is the one component and the other component is this one. This is another component. So x equal to r cos theta, ठीक है, and this particular y is equal to r sin theta. Now we can represent this position vector with r cos theta. X equal to r cos theta directed along the positive x-axis, that is I cap. Then y is the another component in the vertical direction and it is directed along the positive x-axis. So y, so this is r sin theta and directed along positive y-axis. So this is the position vector. ठीक है, और this r cos theta equal to x I cap, r sin theta is equal to y j cap. राइट बच्चों, अब ये पॉइंट हमको क्लियर हो चुका है कि दैट इफ अ पॉइंट इज लोकेटेड ईदर इन टू डायमेंशनल प्लेन और थ्री डायमेंशनल स्पेस, देन वी कैन लोकेट इट्स पोजीशन बाय ड्राइंग अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ये तो हमने बात किया था बच्चों टू डायमेंशनल प्लेन का. सपोज कीजिए ये हमारा क्या था, टू डायमेंशनल प्लेन. सपोज कीजिए इफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लोकेटेड इन स्पेस दैट इज थ्री डायमेंशनल प्लेन, then simply we have to change this particular vector into this form, that is x I cap, y j cap, this is z k cap, right? And from here we can find out the magnitude also, that is magnitude is x square plus y square plus z square, right बच्चों? Also here also you can find the magnitude. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज
x square plus y square. This is the magnitude of this one, right? चलिए, now our next topic is displacement vector. बच्चों displacement vector यहाँ पे भी जैसे हम देखते हैं कि displacement, और displacement का मतलब आप जानते हैं that it is the shortest straight line path between the initial position and final position. तो यहाँ पर अगर displacement vector को बच्चों अगर हम define करते हैं इस जगह पे, तो basically displacement vector is a vector which is drawn from initial position to the final position. चलिए समझते हैं इसको. Let's say coordinate system, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों, ठीक है, हम अभी 2 डायमेंशनल प्लेन अभी कंसीडर कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, एंड लेट्स से दिस इज अ पॉइंट P. कोऑर्डिनेट इज लेट्स से x1 एंड y1. ठीक है. सपोज आफ्टर सम टाइम दिस पर्टिकुलर पॉइंट P is observed at new location, that is Q, and the coordinates are x2 and y2. राइट? अब बच्चों यहां पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, एंड आफ्टर दैट फाइनल पोजीशन वेक्टर वो हम ड्रॉ करेंगे. दिस इज ओरिजिन, एंड लेट्स से दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P. ठीक है. इन द सिमिलर मैनर we will draw this position vector, and this position vector is of point Q, right? Now if you want to determine the displacement vector, तो हमारी जूनियर क्लासेस में हमने डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन में देखा था बच्चों, that displacement is the shortest straight line path between initial position and final position. So here I will draw a vector from initial position to the final position. ठीक है. This is initial position and this is final position. So here I am going to draw a vector, and this is the vector. ठीक है. Let's say this is point Q. इसको यहाँ पे लिखिए. This is point Q. ठीक है बच्चों. So this particular vector is known as displacement vector. ठीक है. Starting from initial position and ending at the final position. So here I can write that दिस, इसको एक सिंबल लिख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का. लेट्स से इट इज डेल आर. ठीक है बच्चों. नाउ फ्रॉम दी, लेट्स से, चलिए इसको पहले एक बार अपना ऐसे लिखते हैं. हियर r1 इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, r2 इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर. ठीक है. नाउ फ्रॉम the law of addition, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों. इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, देखिए इधर, इन दिस, इसको सपोज कीजिए, इसको नाम देते हैं हम O. In this particular triangle OPQ, here R1 plus delta R is equal to R2. R1 plus delta R is equal to R2. ठीक है. ट्राइंगल ऑफ एडिशन याद है that if two particular vectors are representing the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant will be represented by a vector which is taken in the opposite order. ठीक है. तो same according to the triangle law we can write that R1 plus del R is equal to R2. ठीक है. that R1 vector plus del R vector is equal to R2 vector. ठीक है. चलिए यहां पर del R is equal to R2 vector minus R1 vector. So here what does it represent? That this displacement vector is nothing but it is actually the difference between final position vector and initial position vector. Very easy to remember that it is the difference of final position vector and initial
पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, द वेक्टर व्हेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P आर नॉट 0 0, आर नॉट 0 0। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ये भी कहा जाता है दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल with reference to a point which is not the origin, which is not the origin. I repeat, position vector को जब भी हम बच्चों ड्रॉ करते थे तो बेसिकली इट इज ड्रॉन फ्रॉम origin to a particular point, but a displacement vector specify the position of a particle with reference to a point which is not the origin. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर डेल आर आ चुका है, तो इट मींस नाउ वी कैन राइट दैट दिस डेल आर पोजीशन वेक्टर R2। तो पोजीशन वेक्टर R2 क्या है बच्चों? तो पोजीशन वेक्टर अब आपको लिखना आ चुका है दैट पोजीशन वेक्टर R2 नाउ कैन बी रिटन एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस इट इज माइनस x1 i cap plus y1 j cap. Now here I can write that i cap वाला जो टर्म है, ठीक है, तो x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap. So this is the displacement vector. ठीक है बच्चों, अब if you talk about the magnitude, तो magnitude x2 minus x1 square plus y2 minus y1। ठीक है बच्चों, so this is the magnitude of this displacement vector। ठीक है, if we talk about the three dimensional space, तो यहां पर बच्चों एक टर्म और यहां पर ऐड हो जाएगा, और यहां पर मैं इसको ऐसे ही लिख के दिखा देता हूं आपको दैट यहां पर एक टर्म और ऐड हो जाएगा बच्चों, दैट इज z2 minus z1 स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर भी पर्टिकुलर एक टर्म ऐड हो जाएगा बच्चों, z2 minus z1 की क्या। ठीक है, फॉर 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आई होप एक सिंपल से टॉपिक तो बच्चों आपको समझ में आ गया। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट 268 एंड मूव्स फाइनली टू द पॉइंट -4 2 3, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो यहां पर आपको इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहां पर आपको फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो यहां पर सबसे पहले हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं बच्चों। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा? तो विद द हेल्प ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स अब हमको इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखना आता है, दैट इज 2 i कैप, दैट इज 6 j कैप एंड 8 k cap, right? Now R2 that is the final position vector। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो -4 i cap plus 2 j cap and plus 3 k cap। ठीक है बच्चों, so this is initial position vector and this is final position vector, and now we have to find the displacement vector, you can say। So we know that displacement vector is the difference of final position vector minus initial position vector। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे करना है। so let's say R2 minus R1, तो R2 minus R1, so this is -4। ठीक है बच्चों, -4 i cap plus 2 j cap plus 3 k cap। ठीक है, माइनस करना है आपको 2 i cap plus 6 j cap and this is 8 k cap। Now -4 i cap and this is -2 i cap। ठीक है, so this is -4 -2 i cap, right, plus 2 j cap plus 6 j cap, so this is 2 minus 6 j cap and this is 3 and this is 8, that's -8 k। so this is -6 i cap -4 j cap and this is -5 k cap।
So this is your, I can say, this is your displacement vector. This is your displacement vector. ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। So this is our next question बच्चों। A bird flies due east through a distance of 100 meter, then heading due north by a distance of 50 meter. It flies vertically up through a distance of 20 meter. Find the position of the bird relative to its initial position. ठीक है, तो चलिए यहां पर करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एक प्लेन बना लेते हैं बच्चों, एंड इन दैट पर्टिकुलर प्लेन वी विल शो द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, राइट। So here let's say this is the x-axis, this is the y-axis। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों that ये बर्ड सबसे पहले कवर करता है, बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो लेट्स से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो बर्ड ने सबसे पहले यहां पे कवर किया बच्चों ईस्ट के अंदर 100 मीटर। तो लेट्स से दिस इज दी 100 मीटर। ठीक है, किधर है, ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट। इसके बाद इसने नॉर्थ में कवर किया बच्चों डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, तो चलिए ये नॉर्थ में हम इसको बना देते हैं, लेट्स से दिस इज दी नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, और इसमें इसने कवर किया बच्चों 50 मीटर। ठीक है, आफ्टर दैट इट फ्लाइज वर्टिकली अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, आफ्टर दैट इट गोज वर्टिकली अप, इट गोज वर्टिकली अप। इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे लिखना होगा, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, एंड आफ्टर दैट इट गोज वर्टिकली अप, दैट इज 20 मीटर, दैट इज 20 मीटर। ठीक है, एंड एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन वी हैव टू फाइंड, and this particular position we have to find its position, right? So here you can see that this is the first displacement, this is the second one, and this is the third one. So here we will add all the displacements, so we will get the final position vector. So we will get that d1 plus d2 plus d3। ठीक है, now you know that the first displacement is of 100 meter and along the east direction, so this is 100 I cap. The second displacement is towards the north direction, towards the north direction, and it is of 50 meter, so 50 j cap. And the third displacement is of 20 meter and it is along the vertically upward direction, so this is 20 k cap। ठीक है, so finally this is the position vector, and if you want to calculate the magnitude, then once again this is 100 square, this is 50 square, and this is 20 square, right बच्चों? So this is how we can calculate। Now student, this is our next question। An insect crawls from A to B, from A to B, and which is the center of a rectangular slant face। तो ये जो B पॉइंट है बच्चों, ये इस रेक्टेंगुलर फेस का सेंटर है। ठीक है, we have to find the initial and final position vector of the insect and the displacement vector of the insect। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर इंक्लाइन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस तरह से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, दैट ये वाला जो पॉइंट है इंक्लाइन का, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 0 0। जो पर्टिकुलर ये पॉइंट है इंक्लाइन का, इसका कोऑर्डिनेट है 0 to 0, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट आर 0 0 1। ठीक है, अब यहां पर सपोज कीजिए ये इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ लाइक दिस, ये यहां पे आ जाता है। ठीक है, एंड दिस बी, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, बी इज द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्लंट फेस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, जब तक ये इंसेक्ट यहां पर था, टिल देन इस इंसेक्ट ने बच्चों अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है,
तो अलोंग दी एक्स एक्सिस इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था, बट व्हेन दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट रीचेस एट द पॉइंट बी, और ये पॉइंट बी बच्चों किसका सेंटर है, इस रेक्टेंगुलर इंक्लाइन सरफेस का, ठीक है। तो इट मींस इस इंसेक्ट ने यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी 3 दिया हुआ है आपको, तो इस इंसेक्ट ने बच्चों इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक ये आया, तो इट मींस इस इंसेक्ट ने बच्चों इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फेस के सेंटर पे पहुंचकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस 3 है तो सेंटर पे आने के बाद उस इंसेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है इट इज ओनली 1.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इसके वर्टिकल मोशन, तो यहां पर जब तक इंसेक्ट यहां पर ए पे था बच्चों, इस ए पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां पर ये वाई एक्सिस में कौन सी पोजीशन पे था, पोजीशन इस पर्टिकुलर 2 पे, ठीक है। बट जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इंसेक्ट यहां से क्रॉल करता हुआ कहां पर आ गया, नीचे, दैट इज इसके सेंटर पे, इस रेक्टेंगुलर फेस के सेंटर पे। तो इस सेंटर पे आने के बाद आप देखेंगे कि ये जो इंसेक्ट है बच्चों, ये एक तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड इसने डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और यहां पर अगर इस शीट के इस इंक्लाइन के सेंटर पे जब ये आ जाता है बच्चों, तो इट मींस यहां पर सेंटर पे आने का मतलब है कि ये अभी डिस्टेंस 2 है, सेंटर पे आने का मतलब है ये डिस्टेंस कितना हो गया, जस्ट हाफ। तो इट मींस यहां पर इसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वाई डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 1 इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे जब ये पर्टिकुलर इंसेक्ट था इधर इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे, ठीक है, तो आप देखेंगे इसने z अलोंग z एक्सिस ये कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, 1, ठीक है, दैट इज 1 यूनिट पे। अगर ये सेंटर पे पहुंच जाता है बच्चों, तो अलोंग द z एक्सिस इसका डिस्टेंस कम हो जाता है, कितने से, हाफ यूनिट से, ठीक है। तो इट मींस अब हमको ये पता लग चुका है कि इस जगह पर इस पर्टिकुलर इंसेक्ट का बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना था, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो इनिशियली ये कहां पे था, ए पॉइंट पे था, ठीक है, और यहां पर जब ये ए पॉइंट पे था बच्चों, तो इसके कोऑर्डिनेट अब आपको पता है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जब ये था तो जेड एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे था बच्चों, 1, ठीक है, वाई में कितने डिस्टेंस पे था, 2, और एक्स 0, क्योंकि ये पर्टिकुलर अभी कौन सा प्लेन दिख रहा है आपको, जेड वाई प्लेन, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू कितना है बच्चों, दैट इज एक्स का तो 0 है, वाई में कितना है 2 जे कैप, और एक्स में जेड में अलोंग जेड कितना है, दैट इज के कैप, ठीक है, के कैप, ठीक है। चलिए फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर है बच्चों, इधर देखिए फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो एक्स में अभी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 1.5 यूनिट, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस इसने अपना कितना डिस्टेंस कम कर लिया था फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे 2 था, तो ये इसके सेंटर पे जब आया तो डिस्टेंस हाफ हो गया, ठीक है, दैट इज डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, एंड अलोंग जेड एक्सिस ये 1 यूनिट पे था बच्चों, तो जब सेंटर पे आया तो डिस्टेंस डिक्रीज हो गया हाफ यूनिट से। सो हियर वी कैन राइट दैट इट इज 3/2 आई कैप प्लस दिस इज जे कैप, ठीक है, एंड दिस इज 1/2 के कैप, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके फाइनल और इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नाउ यू वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, दैट फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, कितना हो गया ये, दैट इज r2 माइनस r1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। सो हियर इट इज 3/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस k/2, ठीक है, एंड माइनस 2 जे कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो बच्चों आप इधर देख लीजिए, सो दिस इज 3/2 आई कैप, 3/2 आई कैप j, एंड दिस इज, so this is 1 minus 2 j cap, and this is
minus 1 k cap. So here the final result is 3/2 I cap. ये कितना हो गया, तो माइनस j cap, और ये कितना हो गया बच्चों, that is minus k cap. So this is the final displacement, right? And if we talk about the magnitude, ठीक है, तो magnitude के लिए this is the magnitude, the 3/2 square, this is square and this is minus of इसको, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका magnitude, ठीक है. चलिए so बच्चों, this is our next question. Three vectors as shown in the figure have magnitudes a equal to 3, b equal to 4 and c equal to 10. Find the x and y components of these vectors and find the number p and q such that vector c is equal to p into a vector plus q into b vector. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं हम. फाइंड द x and y components of these vectors. ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले आप देखिए, अगर हमको x और y कंपोनेंट निकालना है, लेट्स से वेक्टर a का, तो आप देखते हैं दैट वेक्टर जो a है बच्चों, इट इज कंप्लीटली, तो आप देखते हैं बच्चों जो वेक्टर a है, इट इज कंप्लीटली इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इट मींस इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है. ठीक है, तो इट मींस अगर मैं a वेक्टर का बच्चों, ठीक है, अभी पहले a वेक्टर की हम बात करते हैं, लेट्स से ये a वेक्टर की हम बात करते हैं, तो a वेक्टर के लिए अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना हो, ठीक है, तो इट इज a itself, इट इज a itself. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ax मींस a on. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट तो इट इज 0. ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर a है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेक्टर b, तो वेक्टर b के लिए हम यहां पे देखते हैं बच्चों दैट वेक्टर b, तो वेक्टर b ने इस पर्टिकुलर एक्सिस से बच्चों कितना एंगल बनाया हुआ है, 30 डिग्री. तो इट मींस अलोंग दिस पर्टिकुलर एक्सिस और अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इज b cos 30, is b cos 30, and that is in the vertical upward direction the component of b vector is b sin 30. So b cos 30 and perpendicular to this b sin 30. So here bx is equal to b cos 30 and by that is vertical component is b sin 30. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेक्टर सी की. तो आप देखेंगे दैट दिस इज 30 एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो इट मींस कंप्लीट एंगल इज 120 डिग्री. 120 डिग्री. वेक्टर सी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री अलोंग दिस डायरेक्शन. इट मींस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज c cos 120 and the vertical component will be c sin 120. So here c, so this is the horizontal component, let's say it is c cos 120 degree and cy is equal to c sin 120 degree. राइट बच्चों, सो यहां से अब आप देख सकते हैं दैट दिस 120, so here 120 it is c into cos 120 minus half, cos 120 minus half, and this cy is equal to c sin 120 is √3/2. ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, दैट फाइंड द नंबर p and q such that this particular relation is valid. So here c, तो बच्चों हम इसको भी कंपोनेंट की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज cx is equal to, we know that p ax plus q bx. ठीक है, चलिए सबसे पहले एक इक्वेशन हम यहां से लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज p cx. तो cx यहां पर कितना आया था बच्चों, तो cx आप देखेंगे cx का वैल्यू आया था c माइनस हाफ. ठीक है, तो इट इज माइनस c/2. दिस इज ax, तो ax कितना था अपना, दिस इज a ओनली. ठीक है, प्लस q.
ठीक है। बी एक्स, तो बी एक्स कितना था बच्चों, तो cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ गया b इंटू √3/2, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसका वैल्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। सी वाई की अगर हम बात करते हैं तो सी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ए, हाँ राइट राइट राइट, पी ए वाई क्यू बी वाई, ठीक है। अब सी वाई, तो सी वाई आप देख लीजिए यहाँ पे कितना था बच्चों, दैट इज सी √3/2, तो दिस इज सी √3/2 इज इक्वल टू पी ए वाई कितना था, ए वाई 0 था हमको पता है, तो ठीक है, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है, 0 और क्यू, तो दिस इज क्यू। बी वाई कितना था बच्चों, तो बी वाई इज बी साइन 30, तो इट इज बी इंटू साइन 30 मतलब हाँ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नाउ बी एक्स, तो बी एक्स कितना था हमारा, वन मोर थिंग हियर, ए एक्स की जगह तो ए था, क्यू बी एक्स, बी एक्स की जगह था बच्चों बी cos 30, तो यहाँ पर मैं बी लगाना भूल गया, दैट इज बी √3/2, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों c√3, सी का क्या वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू ये हमको दिया हुआ है दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो दिस इज 5√3 इंटू क्यू, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, तो बी की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2, तो दिस इज 2q, ठीक है। सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ q, दैट इज q कितना आ गया हमारा 5√3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पर c की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 10 है, दिस इज 2, दिस इज p और a, तो a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3, तो दिस इज 3, तो यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 3p, ठीक है, प्लस अब यहां पे देखिए आप q, ठीक है, b कितना दिया हुआ है आपको, तो b दिया हुआ है बच्चों 4, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2√3 हो गया, तो इट इज 2√3, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे दैट दिस इज -5 इज इक्वल टू 3p प्लस 2√3, और ये q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 5√3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 चला गया, ठीक है, वी गेट 3p, ठीक है, और ये कितना हो गया प्लस 5 3 या 15, दिस इज -5, और फाइनली वी गेट दैट 3p is equal to -20, or you can say that p is equal to -20 by 3, right. So this is the complete solution. So next question, a sailboat sails 2 km due east, 5 km 37 degrees south of east, and finally an unknown displacement. If the final displacement of the boat from starting point is 6 km due east, find the third displacement. ठीक है, चलिए यहां पर इसको देखते हैं हम किस तरह से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले लेट्स से नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, राइट। देन सेकंड दिया हुआ है दैट इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 5 किलोमीटर 37 डिग्री, ठीक है, मैं इसको लिखना भूल गया, दैट इज 37 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो इफ दिस इज ईस्ट दिस इज साउथ एंड 37 डिग्री साउथ, सो दिस इज 37 डिग्री ऑफ साउथ, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। चलिए तो हियर वी कैन रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, तो इधर तो आ जाएगा बच्चों दिस कंपोनेंट, तो ये तो हो जाएगा हमारा 5 cos 37 डिग्री, और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों दैट इज 5 sin 37 डिग्री, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट दैट
द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आ गया हमारे पास, ठीक है, वो कितना आ गया 5 cos 37 डिग्री, ठीक है, और ये वर्टिकल वर्टिकल आ गया हमारे पास 5 sin 37 डिग्री, ठीक है। 37 वाला ट्राइंगल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दैट दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो ये जो एंगल होता है बच्चों इट इज 37 डिग्री, इट इज 37 डिग्री, ठीक है। तो cos 37 मीन्स, तो cos 37 मीन्स 4/5, इट मीन्स 5 into 4/5 is equal to 4, ठीक है। 5 sin 37, तो sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, इट मीन्स दिस इज 3, right? Also you note that this 5 sin 37 is in the vertically downward direction, so here we will put minus sign. Now if the final displacement of the boat from a starting point is 6 km due east, find the third displacement. Final displacement of the boat, final means resultant, ठीक है, and it is 6 km due east, it means the final resultant of all the individual displacement, means the addition of all the individual displacement is 6 km due east, 6 km due east, right? तो it means हम यहाँ पर सभी जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं बच्चों उन सबका हम एडिशन कर देते हैं एंड फाइनली वी शुड गेट 6 आई कैप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वही करते हैं हम, तो 6 आई कैप, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या था, दैट इज 2 आई कैप 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। देन इस वेक्टर को बच्चों अगर हमें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो, सो देन हियर वी कैन राइट 4 I cap and this is minus 3 J cap, right? So this is 4 I cap minus 3 J cap. Now let's say the third displacement is in this form, ठीक है, and we do not know the value of A and B, ठीक है। So this is our final equation. Now let's compare. So 2i, this is 6 I cap, this is minus 3j plus a I cap plus b j cap, and it should be equal to 6 I cap. अब बच्चों यहाँ पर when we compare, तो आप देखेंगे 6 I cap 6 I cap, but the value of a on the LHS is equal to 0, so therefore a is equal to 0, ठीक है, right? Now here b j cap and minus 3 j cap, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इट इज माइनस बी माइनस 3 जे कैप, राइट। तो इस तरह का कोई भी टर्म बच्चों एलएचएस में नहीं है। इट मीन्स b minus 3, it means b minus 3 is equal to 0, or you can say b is equal to 3. So our final answer, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। So our final answer is that the third displacement, तो third displacement हो जाएगा बच्चों, that is a I cap plus b j cap. a का वैल्यू आप 0 था आपको पता है, और b का वैल्यू कितना है, that is 3 j cap. So this is the answer of this third displacement. Now बच्चों in this question a spy plane is being tracked by a radar at t equal to 0. Its position is this, and after 130 seconds the position will be this one. Find the unit vector in the direction of velocity and the magnitude of average velocity. तो बच्चों यहां पर हमको एक तो यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो दिस इज 100, दिस इज 2500, तो 2500 minus 100 I cap plus 1200 minus 200 J cap, and the last one is 1000 minus 1000, that is K cap, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं that this is 2400 I cap
प्लस 1000, दिस इज जे कैप एंड दिस इज 0। ठीक है, चलिए, सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 2400 स्क्वायर प्लस 1000 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2600 मीटर, राइट। तो बच्चों ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सिंपली हमको ये जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम से, सो वी विल गेट दिस इज 20 मीटर पर। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड आपका आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी का। नाउ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दैट फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है, फॉर द यूनिट वेक्टर हियर दिस इज 2400 आई कैप प्लस 1000 जे कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, इसका मैग्नीट्यूड आया था 2600 एंड दिस इज इक्वल टू 2400 आई कैप अपॉन प्लस 1000 जे कैप अपॉन 2600। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन 30। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, नाउ इन दिस क्वेश्चन there is a box and this particular box is being pulled by 3 forces, that is 50 root 3 Newton, that is 100 Newton and 100 root 3 Newton। बच्चों यहाँ पर ये जो दोनों forces हैं, this upper one, it is acting at 37 degree with the x-axis and this particular force is also acting at 37 degree from the x-axis but in the downward direction। तो यहाँ पर बेसिकली हमको निकालना है फाइनल रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3, राइट। चलिए, सो गाइस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों हम लोग इन तीनों पर्टिकुलर फोर्सेस के horizontal components लिखेंगे and after that we will write the vertical components of all these forces। ठीक है, तो let's say start with the horizontal component। तो horizontal component जो होगा बच्चों, तो horizontal component इन तीनों forces का, चलिए यहाँ से start करते हैं। ठीक है, तो F1 का जो horizontal component होगा it is F1 cos 37 degree, right। F2 आप देखते हैं that F2 is completely directed in the horizontal direction only, तो इसलिए यहाँ पर F2 की जगह हम खुद 100 यहाँ पे लिख देते हैं एंड आफ्टर दैट F3 की अगर बात करते हैं तो F3 का जो horizontal component है बच्चों वो क्या हो जाएगा, that is F3 cos 37, राइट। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 कितना है, तो इट इज 50 रूट 3, ठीक है, cos 37। चलिए अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम, लेट्स से बनाता हूँ मैंने, 3 4 5, तो बच्चों ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं cos 37 का जो वैल्यू है बच्चों, तो cos 37 का वैल्यू कितना है, इट इज 4/5, देन इट इज 100, देन F3 का 100 रूट 3 इसका मैग्नीट्यूड है और cos 37 एक बार फिर हमने लिखा 4/5। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कितना आ गया 5 10, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 40 रूट 3 प्लस 100 प्लस 5 20, तो यहाँ पर कितना हो गया 80 रूट 3। सो वी विल गेट 120 रूट 3 प्लस 100 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, ऑफ दीज पर्टिकुलर फोर्सेस।
नाउ वी विल राइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो चलिए, सो एफ वाई इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए वन सेकेंड वी विल स्टार्ट विद दिस। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका 50√3 साइन 37, ठीक है। इस पर्टिकुलर फोर्स का कोई भी बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एक तरह से जीरो हो गया ये, ठीक है। एंड आफ्टर दैट F3 के लिए, F3 का हो जाएगा बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज 100√3 साइन 37। काइंडली नोट वन थिंग दैट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बच्चों वो आएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इट मींस वी हैव टू यूज द माइनस साइन। तो यहां पर हमने माइनस साइन यहां पर हमने इसको यूज किया, ठीक है। नाउ 50√3 साइन 37, तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल इट इज 3/5, देन इसको माइनस हो गया ओवरऑल, तो माइनस 100√3 इंटू 3/5। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों दैट 510 दैट इज 30√3 माइनस 520 दैट इज 60√3 और इट इज माइनस 30√3 न्यूटन। दिस इज Fy, right? So this is Fy, this is Fx. Now resultant can be written as Fx I cap plus Fy j cap. So here it is 120√3 plus 100 I cap and this is minus 30√3 j cap. So this is the resultant, right? तो बच्चों this is how we have solved this question, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था बच्चों AI888 2009 में। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 I cap plus 4 j cap and an acceleration 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds we have to determine, ठीक है, कि वो 10 यूनिट्स होगी, 7√2 यूनिट्स होगी, 7 यूनिट होगी या 8.5 यूनिट्स होगी, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हमको यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 3 I cap plus 4 j cap। हमको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है दैट इज 0.4 I cap plus 0.3 j cap, ठीक है। हमको इसका स्पीड निकालना है, ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो आफ्टर 10 सेकेंड्स हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं बच्चों। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, सो वी कैन राइट u दैट इज 3 I cap plus 4 j cap plus acceleration 0.4 I cap plus 0.3 j cap, ठीक है, कितने सेकंड्स बाद? 10 सेकंड्स बाद, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा 3 I cap plus 4 j cap plus 4 I cap and this is 3 j cap. So we have 7 and 7, so that is 7 I cap plus 7 j cap is the final velocity. तो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी आ चुकी है बच्चों, दैट इज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। स्पीड उसने हमसे पूछा है स्पीड, तो स्पीड मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका 7² plus 7², so here 7√2, ठीक है बच्चों। Now in this question बच्चों, in this particular figure there are 3 vectors that is OA, OB and OC, ठीक है। हमको इन तीनों पर्टिकुलर वेक्टर्स का बच्चों रिजल्टेंट निकालना है और यहां पर आप देखेंगे कि दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स इज R एंड R, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये एक सर्किल है और इस सर्किल का जो रेडियस है बच्चों, ठीक है, वही इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो चलिए हमको रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर OC और OA, आप देख रहे हैं कि
कि दोनों पर्टिकुलर वेक्टर्स बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट अब आपको लिखना आता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स OC एंड OA इज, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों रिजल्टेंट इन दोनों का, तो इनका रिजल्टेंट होगा दैट इज R² प्लस R² प्लस 2AB, ठीक है, दैट इज R एंड दिस इज cos 90, ठीक है। ये अभी मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, बाद में फिर आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। सो हियर वी गेट दिस इज 2R² और यू कैन से इट इज R√2, ठीक है। तो R√2 बच्चों इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया R√2, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स इज इक्वल, सो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेक्टर्स का बच्चों वो बिल्कुल 45 डिग्री पे आएगा, बिल्कुल 45 डिग्री पे आएगा फ्रॉम OC और फ्रॉम OA, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं कि ये रिजल्टेंट तो इन दोनों वेक्टर्स का है, बट इसके अलावा यहां पर एक OB वेक्टर भी है एंड इट इज आल्सो डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज दिस OB वेक्टर इज आल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद OC, ठीक है। सो इसलिए यहां पर OB वेक्टर और ये जो रिजल्टेंट है बच्चों ये दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में यहां पर होंगे। इट मींस हियर वेक्टर OB एंड रिजल्टेंट, ठीक है, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट आर पैरेलल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा फाइनल, तो फाइनल रिजल्टेंट के लिए आपको पता है दैट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब OB का मैग्नीट्यूड तो वो R है तो R², इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा बच्चों R² 2, ठीक है, प्लस 2R एंड दिस इज R√2 cos 0, राइट बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू R² प्लस 2R² प्लस 2AB cos थीटा, आपको पता है दैट इज 2R R√2, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं R√2, ठीक है। तो यहां पर यू कैन से दैट यहां पर हम लिख देंगे दैट इज R प्लस R√2 और दिस इज R√2 प्लस, ठीक है। Now guys, in this question a particle is in equilibrium under the forces as shown and we have to find the force F1 and F2, ठीक है। एक √3 का वैल्यू आपको मिला दैट इज 1.7। So as it is given that particle is in equilibrium, it means the resultant force is 0, right? It means जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों दे आर ऑल्सो इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां पर बच्चों हम रिजल्टेंट फोर्स का सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे 0 के, एंड आफ्टर दैट इन द सेकंड स्टेप we will determine the vertical component of resultant force and then once again we will equate it equal to 0, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए लेट्स से सबसे पहले F1 के लिए बात करते हैं। तो F1 इज कंप्लीटली डायरेक्टेड इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस फोर्स का कोई भी बच्चों यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आप देखेंगे इस वाले एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो इट मींस 10 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बच्चों वो कितना होगा, 10 न्यूटन का होगा 10 cos 30 डिग्री, राइट। चलिए F2 की बात करते हैं। तो अब आप यहां पे देखेंगे
this angle is 30, this angle is 30, it means this angle is also 30 degree. Now the complete angle is 60 degree which this particular F2 is making with this x-axis. So इस particular force F2 का जो horizontal component होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा that is F2 cos 60 degree. चलिए आगे चलते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस 15 न्यूटन, तो आप देखेंगे बच्चों 15 न्यूटन वाला जो फोर्स है उस फोर्स ने यहां से एंगल बना रखा है 53 डिग्री. इट मींस द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन मस्ट बी 15 cos 53 and the component of this force along this direction is 15 sin 53. Right बच्चों, but this particular component is along the negative x-axis, so we have to put the sign that is 15 sin 53. now जैसा कि आप जानते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, इट मींस उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स का वो इक्वल टू 0 है. सो दिस इज इक्वल टू 0. tan cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 plus F2 means cos 60 means half, then 15 sin 53. अब ये ट्रायंगल आप जानते हैं बच्चों, that is 3 4 5. तो 4 जो है उसके सामने वाला जो एंगल है बच्चों इट इज 53 डिग्री. ठीक है, तो यहां पर sin 53 कितना हो जाएगा, तो sin 53 हो जाएगा 4/5, तो इट इज 4/5. नाउ दिस इज 5 √3 plus F2 upon 2 minus 12. ठीक है, and this is equal to 0. So here F2 upon 2 is equal to 12 minus 5 √3. ठीक है, and this is 24 minus 10 √3. And finally we get 24 minus 10 √3 1.7, that is 17. And this is 17 Newton. Sorry, 7 Newton. 7 Newton. So this is how we calculate the magnitude of force that is F2. ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट्स. जितने भी पर्टिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है, इन सभी के हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करेंगे एंड देन फाइनली वी पुट देम इक्वल टू 0. चलिए देखते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले बच्चों चलिए यहां से स्टार्टिंग करते हैं. इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा इस वाला फोर्स का, तो इसका फोर्स का होगा 10 sin 30. ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 10 sin 30. आफ्टर दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ F2 कितना होगा, तो इट इज F2 sin 60. F2 sin 60. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, तो कितना है बच्चों, it is 15 cos 53. So it is 15 cos 53. 15 cos 53. And the vertical component of this force, तो ये फोर्स तो खुद ही वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों, तो यहाँ पर इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस. राइट, नाउ Fy that is vertical component of the resultant force is also equal to 0. So this is equal to 0. 10 sin 30 means this is half plus F2 sin 60 means √3/2 plus 15 cos 53. Cos 53 देखिए बच्चों सारे ट्रायंगल से cos 53 हो जाएगा अपना 3/5. तो this is 3/5 minus. Now this is equal to 5 plus F2 into √3/2 प्लस यहाँ से चला गया 3, दैट इज 9 माइनस F1. सो F1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 14 प्लस F2 इंटू √3/2 एंड 14 प्लस F2 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, दैट इज 7 इंटू √3/2 और 14 प्लस 3.5 इंटू √3. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो इट इज नियर अबाउट 19.5 न्यूटन. दिस इज F1. सो
यहां पर अब हमने F1 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, और यही हमको यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।